Hello friends, how are you all? Today we are going to see chapter 6 cyber ethics. So cyber means what over here when you are using internet and in that the websites at that time you have to follow some ethics, right? So ethics यानी आपको कुछ principles होते हैं that you have to follow while using the internet websites, right? So yes, let's start. So first of all, we will see over here what is the meaning of cyber ethics. So cyber ethics are the moral principles that govern of personal behavior in conducting of an activity related to modern information and communication system. अब इसमें क्या है, मैंने जैसे ही आपको बताया कि प्रिंसिपल्स आपको कुछ रूल फॉलो करने होते हैं व्हेन यू आर वर्किंग ऑन द वेबसाइट्स, राइट? तो आपकी एक्टिविटी को पूरा वो देखा जाता है, इट इज बीन seen by everyone. And yes, you have to remember that when you are communicating with people you have to follow some protocols, right? So now first is e-commerce. Everyone know e-commerce means yes, you are doing a business. Online system to conduct the commercial transaction. And the commercial transactions means as you can understand कि आप business करते हो, right? And the transactions which you do on internet, right? With the help of internet. Now this was very much helpful during the COVID time. आपने देखा ही होगा कि COVID के टाइम पर बहुत सारे लोगों को problems आती थी business करने में. So at that time, the transactions were being done, and also many of the things like buying and selling was being done with the help of e-commerce, and now it is in trend also. Now the advantages of e-commerce. It is available 24/7 around the year, right? So 24/7 यानी 24 घंटे सातों दिन आपको मिलता है इसकी facility. It is easier to start an e-commerce venture as setup costs are relatively low. यानी अगर आपको अपने घर में भी स्टार्ट करना है, there is no need of any shop. I don't think कि rent का भी हमें कोई प्रॉब्लम आता है, because yes, you can do it from your home also. That is the facility being given by the e-commerce, and for that some of the websites, you know, Amazon, Flipkart, and now Meesho also is going on. It offers better service to customers because distance is no hindrance. यहाँ आपको distance कोई मायने नहीं रखता है. Maybe you are from foreign country or you are in India or any other place. So if what you can do, you can buy it from anywhere, anything. Customers can select a product from a wide range of choices from different providers. यानी बहुत सारे companies की चीजें वहाँ आपको मिलेगी, and different choices, different quality, different quantity, price में भी matter करता है. Yes, of course it matters for everyone, right? So 1 rupee भी अगर हमारा कम होता है तो yes, we see that thing. So comparing and also compare the quality. The process of buying and selling is relatively fast. Now it's not like that कि हाँ 15 दिन तक रुको, 20 दिन तक रुको, afterwards they will deliver the things. No, it will be within 2 hours also, 2 days also, or maybe within one day. Okay. It greatly reduces the business running cost. यानी जैसे मैंने आपको बताया कि शॉप का खर्चा नहीं होगा आपको, ना कोई एम्प्लॉय आपको रुकना है. You can do it from your home. Customers are drawn to e-commerce for the convenience of shopping from home. You know very well कि हाँ everyone is now industrialized work ज़्यादा चल रहा है हमारे यहाँ, तो industrial sector के हिसाब से सब job करते हैं, and they are not having the time for themselves also, right? So at that time they can do the shopping by sitting at home. जैसे आप बोलते हो कि हाँ 8 बजे 10 बजे रात को वो पर्सन आता है, वो बंदा आता है, and afterwards you want to do something shopping, तो वो नहीं कर सकता है. So this is very much helpful to them. Now the drawback, yes, the drawbacks are also there. Many people are still concerned about the data security. उनकी data security यानी fraud जो होता है, but now they are not hesitating. They also keep their safe that things in their Amazon, and that all sign in करके रखते हैं. But it was a time when there was a problems, but now I think so that the security purpose is very much strong. Okay. Customers hesitate to make an online purchase because they cannot examine the product physically. Yes, हमें जैसे अगर कोई garment लेना है, कोई clothes लेना है, yes, you cannot examine that thing whether it is good or not. But yes, now they have the policy also, written policy, but you have to check it that thing, and also you can check the reviews of that. Now, privacy settings. Yes, you know that social networking sites, we use it, and daily we are listening about the cyberbullying and cyber stalking over there. Cyber crimes होते हैं, तो हमें इस सब को ध्यान में रखकर हमें क्या करना है? We have to do the privacy settings. Privacy refers to the ability to control the information revealed by someone. यानी अगर कोई आपकी information चेक करता है या फिर बाद में उसे मिसयूज करता है, many of the time they are misusing also.
लाइक आपके जो फोटोज होते हैं वो डाउनलोड कर लेते हैं एंड दे कैन मिसयूज इट. सो यस, यू हैव टू कीप इट इन माइंड द प्राइवेसी सेटिंग्स. And yes, many of the website is having the privacy policies page, so you have to check it that thing. Website owners of when use the cookies to collect the information about the users, यानी वो आपकी कलेक्शन करते हैं cookies में. बट रिमेंबर दैट व्हेन यू आर वर्किंग इन द पब्लिक, तो आपको कुकीज में वो सेव नहीं करना है एंड हिस्ट्री को भी डिलीट करना है, राइट. Fraud, yes, there are different type of fraud on internet, as you can be knowing about it. कि हम एक एडवर्टीजमेंट है in which it is being shown कि आपको OTP वो फोन करके पूछते हैं and you are giving the OTP to them. So what they can do, they can get it the money from there, right? So yes, you have to keep it in mind the security purpose. You have to not to share your OTP, and even the bank used to say, आपको बैंक भी बोलता है कि आपको OTP शेयर नहीं करना है किसी के साथ, ना यूजर आईडी और पासवर्ड. नाउ ई कॉमर्स इन दैट ये स्पेशल इट इज बीन डन, क्या अनलॉफुल वे से कोई आपके यानी अकाउंट को यूज कर सकता है, चीट कर सकता है आपको, राइट. नाउ स्पाईवेयर, स्पाई मीन्स एवरीवन नो, आप सबको ही पता होगा कि हाँ सबके यहाँ स्पाई तो होते ही है. So here this is one type of software. It refers to a software that secretly gathers and transmits the information about the user. यानी आपकी इंफॉर्मेशन किसी और को प्रोवाइड की जाती है बाय ब्राउजिंग, राइट. सो वो आपके ब्राउजिंग को चेक करते हैं एंड आफ्टरवर्ड्स दे यूज टू मिसयूज दैट थिंग. एंड समटाइम्स इवन द वायरस एंटर, दैट इज मैलिशियस सॉफ्टवेयर, एंड चेंजिंग द कंप्यूटर सेटिंग जो उसकी होती है वो चेंज कर देता है. नाउ फिशिंग. Phishing, it is form of internet fraud that aims to trick people into revealing sensitive information. Sensitive information यानी आपके credit card numbers को, आपके password को वो लोग जान लेते हैं and afterwards they can misuse it. And special it has been done with the help of emails appearing to have come from genuine source. आपको लगेगा कि हाँ कोई genuine person ने आपको मेल किया है, but after that you will come to know कि हाँ वो कोई ऐसा person है जो आपके चीजों को मिसयूज करना चाहता है, आपके इंफॉर्मेशन को मिसयूज. डैमेज कॉज बाय फिशिंग में रेंज फ्रॉम ब्लॉक्ड एक्सेस टू वन ईमेल अकाउंट, यानी अगर आपका फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है. कैसे कि हाँ भाई फिशिंग ईमेल्स कितनी जगह पे आप लोग शेयर करके रखते हो फॉर द बैंक अकाउंट्स. सो यस, बाय द फिशिंग इट मे हैपन. नाउ ईमेल वेब बग्स आर ऑब्जेक्ट्स यूजुअली स्मॉल इमेजेस secretly embedded in emails together and formations such as the recipient IP address, वो आपको वैसे ही दिखेगा and it is same like phishing, right. Web bugs are used by people engaged in phishing, यानी phishing में जो लोग engage होते हैं वो सारे email web bugs को use करते हैं and they used to do the marketing, email marketing to verify the particular email address. आपके email address को वो verify करेंगे and afterwards yes they will misuse that thing. So you have to remember कि आपको website check करना है whether it is proper or not, and then only you have to share your information. Now security of information. Security of information ensures that prevention of unauthorized access to information and corruption of content. यानी आपको unauthorized access, कोई unknown person आपके चीजों को एक्सेस कर रहा है, आपके कंटेंट को देख रहा है. Common threats to security of information include unauthorized access by people known as hackers and crackers. अब यहाँ हैकर्स और क्रैकर्स जो ऐसे लोग होते हैं कि हाँ वो आपकी सिक्योरिटी को हार्म कर सकते हैं. एंड यस, सम वायरसेस आल्सो, वायरसेस, वॉर्म्स, ट्रोजन हॉर्स, ये सारे वायरसेस है. नाउ कंप्यूटर हैकिंग, इन दैट it refers to gaining unauthorized access to a computer and network resources, यानी कंप्यूटर पे आपके एक्सेस कर लेते हैं वो लोग और वो नेटवर्क रिसोर्सेज से एंटर हो सकते हैं. समटाइम्स यस, यू मस्ट हैव सीन कि मैंने आई यूज्ड टू से टू मेनी ऑफ द पीपल दैट पब्लिक नेटवर्क जब आप यूज करते हो, वाईफाई यूज करते हो, तो हमेशा बैंक अकाउंट्स को आप उस वक्त एक्सेस मत कीजिए, या फिर कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें वो आप कभी भी पब्लिक प्लेस पर यूज ना कीजिए वाईफाई से, पब्लिक वाईफाई से, बिकॉज हैकर्स उसको अच्छे से उसको क्या करते हैं कि वो लोग हैक कर सकते हैं, बिकॉज इट इज अ पब्लिक एंड फॉर दैट दे कैन हार्म योर account also. A person who does hacking is called a hacker or a cracker. Now hacker और cracker में भी difference है. Hacker is a white hat hacker and cracker is a black hat. Hacker is a person who gains unauthorized access to a computer system for the purpose of fixing flaws. ये देखिए, ये that is the benefit, यानी बेनिफिट इन द सेंस कि कभी हम लोग कोई सॉफ्टवेयर बनाते हो और उसको चेक करना है या वेबसाइट को चेक करना है वेदर दे आर हैविंग गुड सिक्योरिटी, तो उसके सिक्योरिटी को, उसकी स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए वो लोग क्या करते हैं
they used to hack it, right? And they used to hack it with the पर्सन, यानी किसी पर्सन को समझ कर इम्प्रूव करने के लिए, सिक्योरिटी के लिए वो यूज किया जाता है. बट क्रैकर इज फॉर द एंटरटेनमेंट. वो सिर्फ गेन करते हैं अनऑथराइज एक्सेस एंड आफ्टरवर्ड्स दे यूज टू स्टील योर इंफॉर्मेशन और मे बी स्टील योर मनी एंड करप्ट योर डेटा. नाउ मेथड्स फॉर प्रिजर्विंग द सिक्योरिटी. आप कैसे सिक्योरिटी को यानी स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं सिक्योरिटी की. एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंफॉर्मेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल पासवर्ड, एज आई हैव टोल्ड यू एवरी टाइम, पासवर्ड इज सीक्रेट सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर. आपको हमेशा याद रखना है कि सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर में बी नॉट लाइक दैट कि हाँ 1 2 3 4 5 6 ABC और बर्थ डेट और ऐसा कुछ नहीं रखना है. बट येस यू हैव टू मेक इट वेरी लॉन्ग पासवर्ड and maybe 10 characters. It is being told to you that 8 characters होना चाहिए. और आजकल तो सामने से आपको बोला जाता है that you have to keep it in mind the combination of uppercase, lowercase digits and at least one special character. तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं कि हाँ भाई मेरा नाम रचना है, तो रचना मैं सिर्फ लिख दूंगी तो वो कोई भी एक्सेस कर लेगा. बट विद दैट इफ आई एम राइटिंग एनी नंबर एंड विद दैट द कैरेक्टर, यानी मैंने रचना अंडरस्कोर 1 2 3 4 5 6 या फिर 1 2 ऐसा कुछ लिखा है, तो फिर वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है. सो नो बडी कैन एक्सेस इट. यस दे विल ट्राई इट, बट एटलीस्ट यू हैव टू मेक इट वेरी मच स्ट्रॉन्ग, योर पासवर्ड. एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, एवरीवन नो कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, व्हाई? बिकॉज यस यू आर हैविंग द एक्सेस टू द इंटरनेट. तो आप कितनी चीजें डाउनलोड करते हो और वो सब आप मीन्स you used to download the games and sometimes the softwares also which are pirated. तो ये सब चीजों के लिए हमें क्या करना है? Yes, to remove the virus we needed antivirus software every time. Next is firewall. That is also a security system. वो protect करता है आपके computers from hackers attack. यानी hackers attack ना कर पाए तो उसके लिए हम लोग firewall use करते हैं. And we have it in our computers, laptops, the firewall. Next is secure data transmission. Privacy, as I told you, privacy settings आप लोग करते हो. Authentication of the sender and recipient. यानी सेंडर और रिसिपिएंट, यानी जो भेज रहा है और जो ले रहा है, उस चीज को हमें ध्यान में रखना है. उसका ऑथेंटिकेशन चेक करना है कि हाँ दिस इज द सेम पर्सन और नॉट. इंटीग्रिटी एंड नॉन रेपुडिएशन. सो लेट्स सी. Secure sockets layer. This is one thing, that is security protocol. Protocol means some set of rules which you have to follow while data transmission. आपको data transmission करते वक्त आपको कुछ rules follow करने हैं, that is network security protocols. Public and private key encryption. अब public and private key, उसके पहले तो हमें पता होना चाहिए what is encryption. Encryption is the process of modifying the data so that unauthorized users cannot read it. जैसे आपने लिखा है दिस एनक्रिप्शन, राइट? तो यहाँ हम लोग उसकी कोडिंग कर देते हैं कि ई की जगह हम लिखेंगे जे, एन की जगह आई. सो दिस इज द थिंग दैट इज डन द कोडिंग, एंड so that the person cannot come to know कि आपने क्या लिखा है, right? So to give the coding, आप coding कर सकते हो उसके लिए. Then decryption. Decryption is the process of converting the encrypted data. तो हमें yes यहाँ decryption आएगा, sorry. So decryption is the process of converting the encrypted data back into a human readable format. यानी वापस अगर जो रिसीवर है तो रिसीवर तक पहुंचाने के लिए हम लोग को क्या करना है? वी हैव टू डू द डिक्रिप्शन, यानी रिसीवर को वो रीडेबल फॉर्मेट में फिर से मिल जाएगा. नाउ प्राइवेट की, इन विच ओनली द ओनर नोज द प्राइवेट की, यानी सिर्फ जो जिसने सेंड किया उसी को पता है उस की का पासवर्ड या वो की कौन सी है. बट इन पब्लिक की इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू एनी यूजर हु रिक्वेस्टेड, यानी कोई भी यूजर है उसको हम लोग ये की पहुंचा देते हैं एंड दे कैन यूज इट. नाउ the next is digital certificate. Yes, this is very important for the emails many of the times, right? So it is a kind of digital code or credential that authenticates the identity of a server. Many of the times कितनी companies होती है वो emails से ही workout करती है, तो email को recognize करना कि ये वही company का है, तो उसके लिए वो लोग digital certificate भी बनाते हैं. They used to do it. It is designed by an independent, recognized and mutually ट्रस्टेड थर्ड पार्टी, यानी थर्ड पार्टी इसको बनाकर देती है, राइट? एंड इट एंश्योर्स इट्स वैलिडिटी, यानी वो वैलिड है या नहीं, राइट? द साइनर ऑफ द डिजिटल सर्टिफिकेट इज नोन एज द सर्टिफिकेशन अथॉरिटी. उसको क्या बोलते हैं? सर्टिफिकेशन अथॉरिटी. नाउ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज अ लीगल प्रॉपर्टी राइट्स
ओवर क्रिएशन ऑफ माइंड सच एज लिटररी वर्क्स, यानी आप अगर कोई बुक लिखते हो, आर्टिस्टिक वर्क यानी आपने कोई ड्राइंग बनाया है, म्यूजिकल वर्क यानी आपने लिरिक्स या फिर आपका जो म्यूजिक होता है, देन आइडियाज, आपने कोई आइडिया दिए एंड दैट इज बीन फॉलोड बाय मेनी ऑफ द पीपल, डिस्कवरीज, आपने अगर कोई डिस्कवरी की है, एंड द डिजाइन, आपने कोई डिजाइन बनाया है जिसको आप अपने लिए ही रखना चाहते हो, सो दैट इज द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. Now in that also there are different things: copyright, trademark, patent, industrial design right and trade secret are the examples of IPR. ये सारे एक example है. Now we will go for that. Copyright, everyone know कि copyright claim आता है कितनी बार हमें YouTube channels पे, like you must have seen कि अगर आप किसी का music use करते हो तो आता है, even you use the photograph which is being made by a professional person, right? तो उसके लिए भी आपको आ सकता है. किसी की पेंटिंग होती है, किसी का फोटोग्राफ होता है, आप अगर देखने जाओ तो हम लोग अननोन पर्सन या फिर फ्रीली अवेलेबल होता है वही हम यूज कर सकते हैं. वी कैन नॉट गो फॉर द मीन्स विच आर बीइंग यूज्ड बाय एनी पर्सन, और वो क्लेम कर सकता है, राइट. दे गिव द क्रिएटर एक्सक्लूसिव राइट, यानी क्रिएटर जो बनाता है उसको ये एक्सक्लूसिव राइट मिलता है टू कंट्रोल द रिप्रोडक्शन इन द सेंस कि उसको फिर से किसी और को देना, राइट. लाइक यू मस्ट हैव सीन कि वो कॉपीराइट वाला तो आपने मूवीज में भी देखा होगा, that afterwards the company used to sell it to other person, or maybe they must have given for some time कि हाँ भाई आप यूज कर सकते हो some period of time. तो वो लोग मूवीज वहाँ अपनी चैनल्स पे भी दिखाते हैं. यू मस्ट हैव सीन. नाउ कॉपीराइट laws include the right to make the copies, authorize others to make copies. यानी आप यहाँ देखोगे तो कितनी बुक्स होती है पब्लिशर्स की, इन दैट दे आर गिवन द कॉपीराइट्स, राइट. तो वो कॉपीराइट कब हुआ है, कितने लोगों के लिए हुआ है, दैट ऑल्सो यू कैन कम टू नो जब वो सेल होता है मार्केट में. एनी वन ऑफ दीज राइट्स कैन बी सोल्ड सेपरेटली थ्रू ट्रांसफर ऑफ कॉपीराइट ओनरशिप, यानी वो डिपेंड करता है जो उसका ओनर है, द क्रिएटर, राइट. सो हाउ मच टाइम ही वांट्स टू गिव द कॉपीराइट टू अदर्स. Now the trademark, you must have seen that the companies have their own trademarks. तो वो trademarks या जो symbol होता है या tag भी होता है, right? तो वो कभी भी आप है ना किसी का use नहीं कर सकते हो. You have to not to use it from others. Like मेरा trademark हो सकता है RJ, तो वही same trademark अगर किसी और का भी है, I have made it now, उसका पुराना है, तो वो claim कर सकता है हमें, right? So yes, the name or the symbol that is used to identify and distinguish the product of the manufacturer, यानी उससे पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट कौन सी कंपनी का है, राइट. एंड दे कैन सेल इट इन द मार्केट बाय द ट्रेडमार्क. आप देखना कि हाँ भाई आपको पता चल जाता है, कितनी बार टैगलाइन से भी आपको पता चलता है कि हाँ भाई दिस इज फॉर दिस कंपनी. अमूल देखो तो अमूल का भी एक है कि हाँ भाई उसका भी एक ट्रेडमार्क होता है, एंड विद दैट द टैग ऑल्सो, टैगलाइन. Now, a patent. A patent is a legal right that grants the creator of an invention the sole right. यानी उसके पास ही right होता है जो भी उसने invention किया होता है. Maybe they must have done a good invention, a shortcut way to means experiment किया या फिर कुछ किया. Like one example I can tell you कि जिसने कोवैक्सीन बनाया, जिसने कोविड की हमारी वैक्सीन बनाई, तो उसके पास rights है, right. He is the inventor, he is the creator of this, तो उसे sole right होता है. Now industrial design right. Industrial design right, the legal right to identify and distribution of industrial object by way of appearance, style or design. अब देखना कितने मॉडल्स जो कार्स के और ये सब के बनते हैं तो वो सेम नहीं होते. इट इज नॉट द सेम फॉर एवरी कंपनी. दे कैन नॉट डू इट द सेम वे, राइट. वाई? बिकॉज द थिंग इज कि हाँ भाई लीगल राइट्स का कंडीशन है. You cannot have the same style for that. हाँ, for that same company they can use it, but different companies होती है तो उसके लिए आप नहीं use कर सकते. Okay. Now trade secret. Trade secret is a non-public information concerning the commercial practices of the secrets owned by a Blackness Blue Pune. तो trade secrets होते हैं जो हमें maintain करने होते हैं, right. Trade means the business and for that secrets. पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ द ट्रेड सीक्रेट्स में समटाइम्स भी इलीगल, यानी आप कितनी बार आप देखते हो कि हाँ कॉन्ट्रैक्चुअल वे में वो लोग कुछ मांगते हैं किसी के पास कि हाँ भाई यस यू कैन सेंड द टेंडर एंड दैट ऑल. तो उस वक्त अगर वो किसी और पर्सन को ओपन हो गया देन इट इज ऑल्सो अ वेरी बैड पार्ट. प्लेगरिज्म.
इट रिफर्स टू एन एक्ट ऑफ यूजिंग अदर्स आइडियाज, यानी किसी और की आइडियाज को आप चुरा लेते हो इन द अननोइंगली और नोइंगली, हो सकता है कि कभी कभार अननोइंगली भी होता है, एंड वर्क्स विदाउट एक्नोलेजिंग द सोर्स ऑफ दैट इंफॉर्मेशन। यानी आप देखना मीन्स इन यूट्यूब चैनल ऑल्सो वी यूज टू डू इट, के डिस्क्लेमर राइट्स हम लोगों को लिखने होते हैं। वाई? बिकॉज हमें यहाँ बताना है कि इट इज ऑफ एनी अदर पर्सन बट आई एम यूजिंग फॉर द एजुकेशन पर्पज। तो द सेम वे आप कितनी जगह पे हम लोग कोई चीज लिखते हैं या कोई पीपीटी बनाते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं, so you have to give the credit to that person. Okay, it is a serious offense that result in severe penalties. कितनी बार पेनल्टी भी लगती है इस चीज के लिए कि आप उसे उसको कॉपी कर रहे हो या फिर उसकी चीजें आइडियाज को चुरा रहे हो, राइट? कितनी बार होता है कि हम लोग कोई म्यूजिक बनाते हैं एंड दैट सेम म्यूजिक इज मेड बाय समवन बिफोर अस, तो वो कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू अवॉइड द प्लेगरिज्म वन नीड्स टू ऑब्टेन रिटन परमिशन। उनके पास से परमिशन लेना है, किसके पास से? द ओनर, जिसने ये बनाया है। नेक्स्ट इज डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स। एनीथिंग क्रिएटेड इन डिजिटल फॉर्म, यानी डिजिटल वे में आपने कुछ भी बनाया है, राइट, एग्जिस्ट इधर ऑन द इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज और ऑनलाइन, यानी ऑनलाइन भी हो सकता है या तो फिर कोई स्टोरेज में हो सकता है। फॉर दैट यू नीडेड अ डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स इंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्चुअल राइट, यानी आप 5 years के लिए या 1 year के लिए उन लोग को कॉन्ट्रैक्ट पे दे रहे हो, दैट ऑल्सो ओके। सो यस, नाउ सॉफ्टवेयर लाइसेंस। हाँ, सॉफ्टवेयर का भी लाइसेंस होता है, यू नो वेरी वेल। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ले लो, विंडोज ले लो, यू फॉर दैट यू नीडेड license, and for that the agreement between the user and the owner, right, that defines that all the user can do with that software, यानी वो सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं। now we all know that many of the people are using pirated also, pirated software use करते हैं, so that is also not good। and sometimes you must have seen कि movies जो बनती है, रिलीज होती है, उसके पहले ही हम लोग कितनी बार देखते हैं मार्केट में वो घूमने लगती है, राइट? so that is also a part of it। there are two common categories of software under copyright law to grant the license specific rights, यानी आप कुछ लोगों को specific rights देते हो that they can do the changes or maybe right। तो ये है proprietary सॉफ्टवेयर एंड फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। वो ओपन सोर्स यानी क्या कि आप किसी को भी यानी मीन्स चेंजेस करने के राइट्स दे रहे हो। इन 1983 रिचर्ड स्टॉलमैन लॉन्च अ न्यू प्रोजेक्ट, उन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया इन दैट टू राइट अ कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम मेकिंग इट सोर्स कोड फ्रीली अवेलेबल, यानी कोई भी उसको फ्रीली यूज कर सकता है, दे कैन डाउनलोड इट विदाउट एनी लाइसेंस, राइट? उन्हें सिर्फ डाउनलोड करना है एंड दे हैव टू यूज इट। JNU software are free not in terms of price but in terms of accessibility, यानी प्राइस में वो फ्री नहीं होता है लेकिन एक्सेसिबिलिटी यानी आपको एक्सेसिबल हो सकता है कभी भी, राइट? In 1985 the Free Software Foundation was formed for funding the GNU project। तो GNU प्रोजेक्ट को फंड देने के लिए 1985 में उन लोगों ने फ्री सॉफ्टवेयर लाया। Eric Raymond founded the Open Source Initiative, a non-profit organization to educate people about the benefits of open source। यानी अभी उन्होंने क्या किया, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने स्टार्ट किया, दैट इज बाय एरिक रेमंड, राइट? इन दैट दे हैव शोन द बेनिफिट्स ऑफ ओपन सोर्स, ओपन सोर्स कैसे आप यूज कर सकते हो उसके बारे में। नाउ फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन। द फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन कम्स विद द एंडोर्समेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन के अंडर में आता है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स के बारे में। अब फ्रीडम किस टाइप के इंफॉर्मेशन? इस इंटरनेट इज वेरी पॉपुलर, पीपल आर कंपैटिबल विद दैट, सोशल मीडिया वेबसाइट सच एज ट्विटर, फेसबुक, ये सब में आप देखते होंगे कितने लोग अपने व्यूज रखते हैं, राइट? सो यस, दे कैन कीप इट ओवर देयर, सो दैट इज द फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन। Government across the world also use the digital technology for information and service delivery, यानी वो सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, राइट, फॉर दैट। Next is digital divide. This is very important. Digital divide refers to the gap between the people who have knowledge as well as the access to the products of modern information technology, यानी किसी के पास मोबाइल फोन्स है एंड सम ऑफ द पीपल आर नॉट हैविंग, लाइक रूरल एरियाज में आप देखोगे तो कितने लोगों के पास वहाँ स्मार्टफोन्स नहीं है, बट why? Because maybe they must be poor, even you must be knowing कि urban areas में भी ऐसा होता है कि कितने लोगों के पास मोबाइल फोन, लाइक इन द कोविड टाइम यू मस्ट हैव सीन कि हाँ कितने बच्चों के
जो ऑनलाइन क्लासेस होते हैं वो नहीं हो पा रहे थे बिकॉज ऑफ दिस, एंड फॉर दैट दे हैव स्टार्टेड ऑन द टीवी ऑल्सो। और वो बाइसेक पे दिखाते थे, गवर्नमेंट वाली साइट्स पे दिखाया जाता था, राइट? सो दे कैन सी इट ऑन द टीवी बाय द चैनल्स फ्रीली। सो दिस इज द थिंग कि डिजिटल डिवाइड जो होता है, यानी गैप जो बीच में आता है, राइट? सो दैट गैप में भी मीन्स उसको बैलेंस करना है। सो योर डिजिटल यूनिफिकेशन, इट refers to providing the same opportunities, यानी दोनों को सिमिलर टाइप के अपॉर्चुनिटीज मिले, ये सब चीजें ध्यान में रखना है टू ऑल सेक्शंस ऑफ द पीपल टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज एंड हाउ टू यूज द सेम, यानी सब लोग कैसे यूज कर पाएंगे। लाइक सम आर हैविंग द स्मार्टफोन बट दे डोंट नो द यूज ऑफ इट, राइट? सो दिस इज ऑल्सो अ डिजिटल डिवाइड। तो हमें उन्हें भी क्या करना है, वी हैव टू share the knowledge to them, as I used to say every time to many of the people in the comment section also कि हाँ भाई आप लोग प्लीज शेयर करो, बिकॉज मैनी ऑफ द पीपल आर नॉट नोइंग, उनको नॉलेज नहीं है टॉपिक के बारे में। सो यस, प्लीज शेयर इट टू देम and thank you. Please like it and share and subscribe, and please share with those who are in need. Yes, I think that it is the need of the time कि आपको share करना चाहिए कितने लोगों को, by that the knowledge is only going to be gained to everyone. Okay, so digital divide नहीं करना है हमें, digital unification करना है। Okay, so yes, thank you, and if you like it, please subscribe it, press the subscribe button. Thank you.